Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who is live with me over there and whether I can see myself live as well. And in the meantime, those of you who are watching, आप लोग मुझे लिख कर बताइए आप लोग कहाँ से लॉग इन करें. Are you from Pakistan? Are you from abroad? या जो कोई जहाँ कहीं से भी है, just write down and let me know. And also let me know, what do you think I plan to talk about today? So the topic is pretty clear, but you have to use a little bit teeny meeny of your brain in order to analyze what I mean by it and what I plan to talk about. So I'm just going to check out myself on the other platform and then I'll be right back, and I'm just going to start with the session without wasting any second. Okay, so I can see myself live, loud and clear, and I hope my voice is audible and there isn't any, it's not hazy or anything like that. And the picture overall, I don't find its quality is that good, but I think it would work as long as my voice is audible. The picture really does not matter. So what I plan to talk about. You know what, I believe that every person is their true asset. So we need to find this thing in ourselves. We need to encourage ourselves in investing things or investing time in ourselves. So this is what I plan to talk about, that one person, not one person, everyone needs to invest in themselves. So we are like, you need to invest in yourself. You are worth it and you are your best investment. So when we talk about this, what do we mean by this? Now you see, if we talk about personal growth leads to success. And how does it lead to success? Like when we are investing in knowledge, we are investing in skills, we are investing in personal growth or self improvement. These are all the things which lead us towards success. अब अगर हम जो है मुख्तलिफ लोगों को देखें, दुनिया के वो लोग जो कि अमीर तरीन हैं, अगर उनको हम देखें, like just take the example of Warren Buffett. So Warren Buffett, like he's one of the richest man in the world. और उनका जो ज़्यादा क्रेडिट है वो किस चीज़ को जाता है? ही रेड 500 पेजेस एवरी डे, डेली बेसिस पे. सो जो उनके जो उनकी इन्वेस्टमेंट है नॉलेज में, इट पेड ऑफ एंड इट गेव हिम अ लॉट ऑफ वेल्थ. सो अगर आप जो है ये सोचते हैं कि भाई मैंने अपने अंदर जो है टाइम इन्वेस्ट कर लिया तो वो मेरी सेल्फिशनेस होगी, या मैंने अगर ये कोई स्किल जो है गेन कर ली, या इससे जो है आगे मेरे जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ब्राइट हो जाएंगे. सो एट टाइम्स वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि भाई अगर हम अपने ऊपर जो है कुछ स्पेंड कर लेंगे तो दैट वुड बी आवर सेल्फिशनेस, और we are taking it out of the mouth of other people, and other people in the sense कि when you are a sole bearer of the family, तो फिर then you think about the family, and then there are times जब आप अपने ऊपर invest नहीं करते. But you know what, अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं क्योंकि हर चीज़ जो है डिजिटल हो गई है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी नॉलेज अवेल कर सकती हैं. लाइक जिस तरीके से जो है I give live sessions and these are free of cost. Similarly, if you go on YouTube is there's a whole world on YouTube. उसमें जो है हर तरह की कैटेगरी है, हर तरह का नॉलेज है, हर तरीके की एक्सेस है, एंड इट्स टोटली फ्री. इट्स नॉट दैट लाइक देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप जाते हैं तो यू हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन फॉर इट. दोज आर डिफरेंट टूल्स, बट देन देयर आर मैनी टूल्स. अगर चैट जीपीटी का जो है बेसिक है तो इट्स टोटली फ्री, तो यू डोंट हैव टू पे एनी टाइम टू इट. कोई सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं. देन देयर आर सो मेनी अदर टूल्स. देयर इज ओपन प्लेटफॉर्म, देयर इज एन एआई फॉर दैट. सो उधर भी ढेर सारे जो है टूल्स हैं. यू कैन मेक यूज ऑफ फ्री टूल्स एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड एस योर स्किल. नाउ देयर आर सो मेनी पीपल जो कि इस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स को जहाँ पर फ्री टूल्स मिल रहे हैं, फ्री नॉलेज मिल रही है, फ्री ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, उनको एक्सेस करते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं. सो व्हेन आई से कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इट्स नॉट समथिंग कि जो आप सेल्फिशली कर रही हैं. अगर आपका कंसर्न जो है मनी है तो देन
दीज आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चीज़ें सीख सकते हैं. एंड देन यू हैव टू एस आप किस तरह कर सकती हैं कि जो नॉलेज आपने सीखा है यू नीड टू अप्लाई टू इट. चाहे आप जो है अपनी कोई चीज़ बना कर उस पर अप्लाई करें, या आप जो है इर्द गिर्द आपके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या आपके ऐसे फ्रेंड्स जो कि स्टार्टअप कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज टॉक विद दोज फ्रेंड्स, और आप जो है अपनी जो स्किल है वो उनकी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस. अब जो टाइम है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर लुकिंग फॉर स्किल लेबर, और स्किल लेबर मिल रहा नहीं है. यहाँ पर हम कहते हैं कि भी नौकरियाँ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को रोकती हैं कि भी स्किलफुल जो है पर्सन नहीं है. सो इफ़ यू हैव अ बेसिक नॉलेज, अगर आपके पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं भी है, तो आप प्लेटफॉर्म पे जाएं जो स्किल आपको इंटरेस्ट करती है, आप जाकर वो स्किल लर्न करें और फिर उसमें एस करें, उसको प्रैक्टिस करें, और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जाकर उसको अप्लाई करें. अगर आप इस चीज़ के इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि जी मुझे तो जो है ये ऐसी जॉब चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई आप जो है बैठ के जो है ना बस इस चीज़ के इंतज़ार में बैठे रहें कि जब तक आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी तब तक आपने कुछ नहीं करना. जो आपने अवेल किया हुआ है उसको जाकर अप्लाई करना शुरू करें. जब आप जो है ऑन जॉब होंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप अपनी स्किल्स को साथ के साथ एस कर सकते हैं. यू हैव टू पुट इन सम टाइम इन अ डिपार्टमेंट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप ये सब कर सके. एंड देन जब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि ओके यस ये बंदा जो है या ये बंदी जो है केपेबल है, तो वो खुद आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो खुद आपको जो है ऐसे कोर्सेज करवाते हैं या ऐसे स्किल्स करवाते हैं या ऐसे प्रोग्राम्स में डाल देते हैं कि जहाँ से आपकी लर्निंग और बढ़ती है. सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग कि जो पर्सनल ग्रोथ है इट ऑलवेज लीड टू सक्सेस. अच्छा, फिर अगर हम मज़ीद बात करें तो अगेन देयर समथिंग विच वी ऑल हियर वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ. सो अगर जो है आपकी हेल्थ नहीं होगी, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ या अपने फिजिकल हेल्थ पे जो है फोकस नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना प्रोडक्टिविटी और जो लॉन्ग टर्म लाइफ है वो भी इफ़ेक्ट करेगी. सो दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ अगर है तो वेल्थ है. लाइक इफ़ यू से कि भाई वेल्थ होगी तो हेल्थ है या नहीं है, डज नॉट मैटर, इट डज मैटर. क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं होगी तो वो आपकी वेल्थ किसी काम की नहीं, सिवाय इसके कि उस वेल्थ के ज़रिए जो है आप अपनी मेडिकेशन जो है अफोर्ड करे होगे, वो आपको वेल्थ उस सिनेरियो में काम आएगी. सो देखिए, वेल्थ स्पेंड करने का तो जो असल मज़ा है वो यही है कि आपकी हेल्थ भी हो. व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन कि आप उसको स्पेंड करें या अपने लव वंस पे स्पेंड करें, या कोई जो है यू कैन टेक सम डेज ऑफ और वहाँ पर जाकर जो है एट डिफरेंट स्पॉट्स या डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर आप फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें. सो वेल्थ के साथ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ. चाहे आप उसमें जॉग करें, वॉक करें, मेडिटेट करें या थेरेपी करें किसी किस्म की, या फिर ये है कि एक्सरसाइज करें. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच कम इन हैंडी व्हेन यू हैव हेल्थ एंड वेल्थ, इट गोज साइड बाय साइड. सो दिस इज़ अनदर थिंग कि जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने हेल्थ को भी उसको भी प्रायोरिटाइज करें, उस पर फोकस ना छोड़ें. ओके इकबाल जरकाश, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. सो देन फिर जो है लाइक जिस तरह मैंने स्किल्स की बात की, जिस तरह मैंने नॉलेज की बात की, नॉलेज तो चलें आपने अचीव कर लिया या गेन कर लिया. इन द सेम वे अगर स्किल की बात करें तो किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी एरिया में कोई भी स्किल होता है, जो स्किल डेवलपमेंट होती है, इट ऑलवेज पेज ऑफ. इफ़ यू आर एन एमेच्योर या इफ़ यू आर अ बेसिक और इफ़ यू आर अ नेसियर और आपको किसी किस्म के कोई स्किल नहीं आती, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन टू अ सर्टन स्किल. उसके बेसिक से स्टार्ट करें एंड देन यू कैन गो टूवर्ड्स द इंटरमीडिएट. फिर उसके बाद लाइक इट्स द बिगिनर, देन इट्स द मिडल, देन इट्स द सीनियर मिडल, देन इट्स द प्रोफिशिएंट लेवल. सो ये सारे जो है ना व्हेन यू एनरोल योर सेल्फ इन टू सर्टन कोर्स, तो उसमें भी ये होती हैं चीज़ें. दे हैव अ क्राइटेरिया कि भी अच्छा अगर आपको जो है ये नहीं आता या कुछ भी नहीं आता तो यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम. फिर जब आपको वहाँ का बेसिक नॉलेज आ जाए देन यू कैन मूव अ स्टेप हायर and you can go into other programs until you finally become professional in that particular field. So पहले तो देखें पहले तो there were institutes जहाँ पर आप जाकर ये चीज़ें कर सकते थे. and then बैक देन इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स भी नहीं होते थे, गिने चुने इंस्टीट्यूट्स थे. अब तो जो है आप एक पत्थर उठाएं तो 10 इंस्टीट्यूट्स निकल आते हैं.
और उन इंस्टीट्यूट्स में इट्स वेरी रेयर कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो कि आप कह सकें यस इन्होंने जो हमें सिखाया दैट वाज यू नो अप टू द मार्क, या इट वाज competing with what is working in the industry and what is out in the field. क्योंकि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप कोर्सेज तो पढ़ाए जाते हैं पर वो कोर्सेज जो है आपके किसी काम के नहीं होते. सो प्रैक्टिकली व्हेन यू गेट आउट तो आप जो है बेसिक ही होते हैं, सो यू डोंट लर्न एनीथिंग. सो दैट्स व्हाई आई से don't get involved into institutes unless and until you know कि yes this institute is working and this is good. Yeah, if you know about mentors, okay ये mentor अच्छे हैं and they are giving you know quality things, या वो हमें quality knowledge provide कर रहे हैं या हमें quality skills सिखा रहे हैं, तो फिर आप जाएं जाकर उनके साथ अटैच हो और बेशक आप उनके इंस्टीट्यूट के साथ सीखें. सो इसके लिए मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर जो है if you are short of money and you cannot afford it, what you can do is you can go on these platforms जो कि मैंने आपको बताए, और यहाँ से आप जाकर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो यूडेमी है, चाहे वो कोर्सेरा है, चाहे वो जो है गूगल है. सो देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज़ और हर जगह पे जो है ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल होती है. सो बेसिक भी अगर आप पे करें ना तो मेजर जो चंक है वो आपको जो है स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड का मिल जाता है. So if you are a keen lover of you know learning and you want to improve yourself, या you want to have better future prospects, तो उसके लिए आपको अपना जो knowledge है, अपना जो skill है उसको enhance करना पड़ना है and you have to learn. और वो learning कब होगी? वो learning तब होगी when you are self conscious और आप इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि आपका टाइम कितना important है. अगर आपका टाइम जो है फजूल की स्क्रॉलिंग करते हुए या फजूल के कंटेंट देखते हुए गुजरता है तो देन यू आर नॉट इन दैट पोजीशन. इनफैक्ट आप जो है कभी ये चीज़ असेस ही नहीं कर पाएंगे या गेज ही नहीं कर पाएंगे कि ज़िंदगी में टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. सो जब हम ये बात करते हैं या बात लोगों को करते हैं सुनते हैं कि टाइम इज़ मनी, तो यू नीड टू एनालाइज कि वो ये बात क्यों करते हैं. वाई डू दे से टाइम इज़ मनी? वेल लॉजिकली टाइम मनी इसलिए होता है क्योंकि एक जो टाइम है वो अगर गुजर जाए, ये जिस टाइम में मैं बैठी हूँ आपके साथ ये सेशन कर रही हूँ, जब ये गुजर जाएगा, इफ़ आई डू नॉट मेक प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ दिस टाइम, तो ये टाइम गुजर जाएगा एंड देन आई हैव टू वेट फॉर अनदर डे, अनदर you know I'll have to wait for 7 o'clock when that time comes, so I'll be able to deliver another session. So the thing is कि जो आपके पास टाइम है उसको make the best use of that time and do productive things. जब आप productive things करेंगे या आप productively कुछ उसमें सीख रहे होंगे and you'll become a skillful labor, तो यही जो skillful आपका skill है ये आपके काम आएगा and it's going to pay you off. So it's not wrong to think about oneself क्योंकि we are our best investment. अच्छा then इसमें आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कि you need to remember कि जो networking है और जो mentorship है it also goes hand in hand. So you need to follow people या you need to find mentors जो कि आपको सही जो knowledge है या सही जो skill है वो impart कर सकते हैं. If you are going to run after so-called manjan sellers या so-called gurus who are just chorus in the sense this is one of my mentor, he used to use this word, he's a copywriter, Shehzad Khan. So he used to use the word churus के भाई ये जो बैठे होते हैं manjan sellers, these are other butchers, ये आपको जो है butchery जो है कर रहे होते हैं. So don't run after those churus and butchers. ऑलवेज गो आफ्टर पीपल जो कि आपको रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी लाइफ में कोई मायने रखते हैं या आपकी लाइफ में कोई मायने ऐड करते हैं, आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं जहाँ पर आपने जाना होता है. सो फॉर दैट नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द राइट मेंटोर इज़ ऑलवेज गोइंग टू लीड यू टू सक्सेस. और जो जितना शुरू होगा, जितना मंजिल सेलर होगा, वो आपको सुर्खबत्ती के पीछे लगाए रखेगा. सो आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी, बस रास्ते में सुर्खबत्तियाँ ही बत्तियाँ मिलेंगी, कोई सब सिग्नल नहीं मिलेगा. सो सब सिग्नल के पीछे भागें, सिर्फ सब सिग्नल वाले जो है मेंटोर्स को देखें एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज, नॉट फ्रॉम द चुरूज. ओके, सो लाइक अगर मैं इसमें आपको जो है बिल गेट्स की एग्जांपल दूं, तो बिल गेट्स ने जो माइक्रोसॉफ्ट है, ही बिल्ड दैट विद द गाइडेंस ऑफ हिज मेंटोर्स.
एंड मेंटोर्स जिसमें जो है वॉरेन बफेट था, एंड नेटवर्किंग विद टेक पाइनियर्स. So these were the people जिनके थ्रू जो है he was able to build Microsoft. And then another thing जो इसमें आती है, let me take your comments side by side. Okay, you have to overcome the fear of you have to overcome your fears, और that is also through self investment. अगर आपको किसी किस्म का डर है और आपने वो डर निकालना है, सो व्हाट कैन यू डू, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. लाइक अगर आपको जो है पब्लिक स्पीकिंग का डर है, so what you can do is you can invest your money or you can invest your time into learning how to speak. This is a skill. So speaking is a skill, communication is a skill. आपको ये चीज़ें सीखनी पड़नी है. अगर आपने जो है ऐसी जो है फील्ड में जाना है जहाँ पर सिर्फ आपका काम नेटवर्किंग है या सिर्फ आपका काम बोलना है, जिस तरह हम मीडिया को देखते हैं या हम नेगोशिएटर्स को देखते हैं या हम जो है एम्बेसडर्स को देखते हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं उनको देखते हैं, या इवन जो है ऐसे लोग जो कि बिजनेस प्रपोजल्स लिख रहे होते हैं व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट्स. अगर जस्ट हम जब क्लाइंट्स को देखते हैं तो क्लाइंट से बात करने के लिए भी यू नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट. क्लाइंट का माइंडसेट क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसको किस तरीके से आपने रिस्पॉन्स करना है, उसको जो है कहाँ पर जो है कौन सा उसका जो है दुखती रग है जिस पे आप हाथ रखेंगे तो क्लाइंट आपकी बात सुनेगा. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच कम थ्रू कम्युनिकेशन, विच कम थ्रू ओवरकमिंग दिस फियर कि भाई ये जो एक फियर होता है कि आई कांट स्पीक, सो कांट को कैन में तब्दील करना होता है. और उसके लिए इफ़ यू रिक्वायर टू टेक सर्टन कम्युनिकेशन क्लासे या यू नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक पब्लिकली, सो वो जाएं, वो क्लासेस लें. एंड देन वो क्लासेस लेने के लिए भी यू कैन आइदर यूज द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या आइदर यू कैन गेट होल्ड ऑफ मेंटोर्स जो आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकें या वो आपको ये बता सकेंगे भी हाउ आर यू सपोज टू कम्युनिकेट. क्योंकि हर एक इंसान के साथ आप एक तरीके से नहीं कम्युनिकेट करते. लाइक देयर आर मेनी पीपल ऑन दिस इन माई लाइफ फील्ड. अब हर एक से आई वुड बी कम्युनिकेटिंग इन अ डिफरेंट वे क्योंकि आई हैव टू इंटरप्रेट कि भाई किसका क्या लेवल है. सो उससे उसके लेवल के मुताबिक उसके साथ कम्युनिकेट करूँगी. लेवल का व्हेन आई से इट डज नॉट मीन कि मैं जो हूँ लोगों को का जो है जो स्टेटस है उसको देखकर जो उनसे बात करती हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस आई नीड टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी. लाइक देयर आर मेनी मैच्योर पीपल, पर वो जो मैच्योर पीपल होते हैं उन मैच्योर में भी बहुत आई एम सॉरी बहुत बच्चे होते हैं. सो मैच्योर पीपल जिनमें बच्चे छुपे हुए होते हैं उनसे आपका जो अंदाज है बातचीत का वो टोटली डिफरेंट होता है. सिमिलरली देयर आर मेनी elderly people who are very strict, who are very outspoken. सो आपने उनसे उनके तरीके से बात करनी होती है. सो दिस इज अ स्किल. अब ये वाले जो स्किल है ये आपको विद टाइम आता है. व्हेन यू कीप ऑन एंड नेटवर्किंग, व्हेन यू कीप ऑन टॉकिंग विद पीपल, तो you try to understand and you try to analyze कि भाई why do people react in a certain way, या उनके क्या बैकग्राउंड. हर एक के बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, हर एक के साथ आपकी बातचीत डिफरेंट होती है. आपकी जो बातचीत आपके घर में एक सिबलिंग के साथ है, दूसरे सिबलिंग के साथ आपकी वैसी बातचीत नहीं होती क्योंकि यू आर डीलिंग विद देम ऑन अ डिफरेंट लेवल. एवरी सिबलिंग इज डिफरेंट. पेरेंट्स के साथ आपकी डिफरेंट कम्युनिकेशन होती है. पेरेंट्स और चिल्ड्रन की आपस में कम्युनिकेशन वेरी करती है. पेरेंट की एक बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन होती है, दूसरे बच्चे के साथ दूसरी कम्युनिकेशन होती है. सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर स्किल कि मैं कहूँ कि इसमें जस्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है या इसमें जस्ट पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व है. इसमें बहुत सी चीज़ें और भी इन्वॉल्व है. इसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है, इसमें माइंडसेट भी इन्वॉल्व है, इसमें बैकग्राउंड्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें जो है बेसिक नेचर ऑफ द पर्सन भी इन्वॉल्व है. सो ये सारी चीज़ें तभी आती हैं when you are ready to invest in yourself. If you are unable to invest in yourself, तो how are you going to invest in people? या जो आप टाइम लोगों को दे रहे हैं आप उनके मसाइल का हल किस तरह निकाल सकेंगे जब आपको खुद ही नहीं समझ आएगी. तो लोगों को समझने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी आप वो चीज़ें समझने की कोशिश करें एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ सम काइंड ऑफ नेचर. कुछ बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं जो हर इंसान के कॉमन होते हैं and then there are certain things जो थोड़ी different होती हैं. It varies from person to person and you just need to put yourself into their shoes in order to understand. So this is about कि भाई आप अपने fear को तभी overcome करेंगे when you're ready to invest in yourself.
अच्छा देन जो है अगर मैं मज़ीद बात करूं, जितना मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टाइम जो है हमारी ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और लाइक एवरी वन हैज़ 24 आवर्स इन अ डे। अब उन 24 आवर्स को आप किस तरह यूज़ करते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, वो आपके हाथ में है। आप चाहे तो जो है 24 में से जो है 20 घंटे जो है नेट पे गुजार दें, स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार लें, नेटफ्लिक्स देख लें, या किसी किस्म की जो है एडिक्शन का शिकार हो जाएं। So it totally depends on you, and then there you this is also into your hands कि आप 24 में से 20 आवर्स कोई चीज़ सीखने में गुजारें, कुछ उसको सीखें, कुछ उसको स्टडी करें, कुछ उसको प्रैक्टिस करें, एंड देन ट्राई टू अप्लाई इट एंड डू डिफरेंट थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स कर लें, या यू जस्ट यू नो लिस्ट डाउन सर्टेन थिंग्स। ओके, ये एक जो है लिस्ट है ऑफ स्किल्स विच आई वॉन्ट टू लर्न। सो पहले एक स्किल सीख लें, 5-6 मंथ्स जो है उस पर लगा लें। बट येस, इफ़ यू आर फास्ट लर्नर, you can make a list of say about 5 skills कि भाई ये 5 skills हैं जो मैंने इस महीने में सीखनी है। and when you learn things in chunks, बिग साइज में जो इन्फॉर्मेशन आप जो है इनटेक कर रहे होते हैं वो आपके लिए अप्लाई करना ज़्यादा ईजी होती है। खैर इट्स गोइंग टू डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल। बाज़ लोग जो है कई स्किल्स एक साथ सीख लेते हैं, बाज़ लोग जो है एट अ टाइम एक स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। एंड व्हेन आई से वन स्किल, इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ वो एक स्किल सीख रहे हैं, इट्स दैट कि भाई आप उस एक स्किल में क्या कुछ सीख रहे हैं। लाइक a few days ago I just completed my Google certification of digital marketing and e-commerce. अब ये बज़ाहिर डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स सिर्फ आपको जो है 3 letter वर्ड लग रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, बट इट्स नॉट जस्ट दीज 3 words, ये एक पूरा समंदर है। Digital marketing, it's not just digital marketing, it's many things in it. Like there are so many like 7 to 8 modules, 7 to 8 in fact course modules, और हर module में 4 modules each. So it's nearly like 166 hours. So and then 166 hours को if you are a self learner, या आप जो है self study कर रहे हैं या self pace पे कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपको 5-6 months लग जाते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ योर टाइम, आप अपने टाइम को किस तरह यूज़ करते हैं, या आप स्क्रॉलिंग कर लें, या आप चैटिंग कर लें लोगों के साथ, अपना टाइम उस तरह यूज़ कर लें, या फिर आप कोई स्किल ले लें एंड यू वर्क ऑन दैट स्किल। सो 2025, those people who are into digital marketing, those people who are into data visualization, या those people who are into tech, या who are learning prompt engineering या chat gpt related things। खैर अब तो जो है डीप सीक भी आ गई है, सो इट्स गोइंग टू चेंज द ओवरऑल आर्टिफिशियल मॉडल सिनेरियो, वो ओवरऑल चेंज हो जाएगा। या फिर आप जो है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई ऐप सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ AIs इन योर डे टू डे लाइफ, एंड देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने टाइम को किस तरह यूज़ करेंगे। नाउ आई नो देयर आर मेनी पीपल जिनको इस चीज़ पर बहुत इतराज़ होता होगा कि भाई हम मैसेजेस करते हैं, हमें मैसेजेस के जवाब नहीं देते। यू नो व्हाट, देयर आर मैसेजेस, आई हैव अ टाइम कि भाई इन मैसेजेस का मैंने इस टाइम पे जवाब देना है, क्योंकि आई हैव टू ऑल्सो परसू अदर थिंग्स। लाइक जिस तरह मैं आपको कहती हूँ कि भाई यू हैव टू लर्न डिफरेंट स्किल्स इफ़ यू वांट कि आपका डे टू डे जो काम है वो स्मूथली वर्क करे, तो यू हैव टू गेज न्यू स्किल्स एज वेल। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ भाई बस मैंने ये स्किल्स गेज कर लिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी गेज करने की, तो दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट। एवरी सेकेंड टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग, न्यू एंड न्यू सॉफ्टवेयर आर बीइंग लॉन्च। सो आपने जो है यू हैव टू कीप एन आई, आपने पढ़ना भी है, आपने देखना भी है, आपने अप्लाई भी करना है। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आपका जो एरिया ऑफ वर्क है वो कितना वाइड है, या आप किस किस चीज़ को या किस किस टूल को जो है यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में। सो यू हैव टू बिकम acknowledge with these tools, and you have to learn those and you have to practice them as well। क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी को जो है बताने जोगे होंगे। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ आपने देख लिया हाँ भी ये मोटे मोटे नाम है, but you don't know a thing about them, so that does not work। it would be just like कि भाई आप बोल रहे हो and you are not practicing। so whatever you are preaching, you need to practice it on your end as well, ताकि that becomes more authentic and that becomes credible as well कि भाई आपने खुद यूज़ किया हुआ है तो आप वो मशवरा दे रहे हो। अगर खुद नहीं यूज़ किया हुआ तो आप क्या मशवरा दोगे, वो तो फिर हवाओं में बातें करने वाली बात होगी। सो इन दैट सिनेरियो जो टाइम है इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, इसको सही तरीके से यूज़ करें, क्योंकि जो निकला हुआ टाइम होता है वो चला गया सो चला गया।
वो कहते हैं ना कि अगर तीर कमान से निकल जाए तो वो वापस नहीं आता. सो द सेम इज़ विथ टाइम. एक दफ़ा जो टाइम निकल गया सो निकल गया. सो इफ़ यू वांट कि भाई आप टाइम को जो है बाय 4 लॉक्स लें एंड यू यूज़ इट प्रोडक्टिवली, देन स्टार्ट मेकिंग यूज़ ऑफ टाइम. चाहे आपको उसके लिए जो है लिस्टें बनानी पड़ें, चाहे आपको उसके लिए कैलेंडर्स बनाने पड़ें, चाहे आपको उसके लिए डायरीज़ मेंटेन करनी पड़े, या चाहे आपको जो है टाइमर्स लगाने पड़े, तो यू हैव टू मेंटेन योर टाइम. और इसी तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं एंड यू कैन बिकम प्रोडक्टिव. एंड इन द एंड आई वुड से कि भाई अपने आप में इन्वेस्ट करना जो है कोई सेल्फिशनेस नहीं है. इट इज़ फॉर योर ओन बेटर एंड यू योर सेल्फ आर योर biggest investment. So start investing in yourself without this झिझक, without this डर कि फैमिली क्या कहेगी, am I being selfish? No, you are not being selfish. क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं, you're doing it for your family. So it's time to invest in yourself. Now let me just check your comments on the other platform. If you like today's content, so do let me know via your emojis कि आपको जो है आज. Okay, thank you so much for all these emojis. I can see them. So thank you so much. Or if you haven't still subscribed to my YouTube channel, so do go and subscribe to that channel क्योंकि there too your comments matter. So you can always go and subscribe to it and you can leave your comments over there as well. और यहाँ पर भी आप अपने comments, yes I can see those comments जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं. And Ijaz Ahmed Lashari, thank you so much for joining and thank you for your compliment as well. So inshallah I'll meet you again on Thursday. I guess no, not on Thursday. I guess on Friday. Yes. So I'll be today's session and then yes, on Friday I'll have another session and then I'll talk to you. Or in the meantime, if there's any other topic, if you want me to discuss that topic, you can let me know in my inbox. या इधर भी आप बेशक लिख कर मुझे बता दीजिएगा. So I'll just have a look at the topic and then perhaps I can discuss it. Or then see you on Friday. Till then अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.